everyone, in this video I am going to discuss about the next section of the surface chemistry, that is the colloidal state. What is the colloidal state, what are the colloidal solution, what are the colloids and how they are formed. We will have to discuss all these types of things. Actually in 1861 Thomas Graham made an observation. What he observes is certain solute particles cannot pass through the SPM semi permeable membrane, parchment membrane. Certain solute particles do not pass through parchment membrane. What is parchment membrane? This is a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane means it will not allow the all types of particles to pass through them. Then certain solute particles do not pass through the SPM semi-permeable membrane, but certain particles pass through parchment membrane. Now, actually certain particle which do not pass through semi-permeable membrane or parchment membrane, there are certain solute particle which can pass through the semi-permeable membrane or parchment membrane. If you are going to make the solution of NaCl in water, you are dissolving what NaCl into the water. NaCl will be completely soluble in water, and whenever you will be allowed to pass through them the SPM, the solute particles such as NaCl, KCl, urea, sugar. You know what is solute? The smallest component of the solution, the short component of the solution. The NaCl, KCl, urea, sugar, you are made a solution of these substances. You are taking NaCl as a solute and water as a solvent, and you are making the solution. And whenever you want to allow the pass through them, the SPM, the NaCl molecules will easily pass through the SPM parchment membrane. But try to make the solution of starch in water. Take some starch, dissolve in the water. You will observe starch will not pass through the SPM. Starch will not pass through the SPM. जो gum है that will not pass through the SPM. यानी कि gum, starch. You are making the solution in the water, but gum and starch. What are the gum and starch? They will behave as a solute. They will behave as solute. Gum, starch, dyes हो सकती हैं, that such as the methylene blue. अब ये जो डाइज हैं, ये जो आपके सल्यूट हैं, ठीक है, क्या है, आप उसको एसपीएम से पास करने की कोशिश कर रहे हो. ये वाले सल्यूट कर रहे हैं पास, ये वाले सल्यूट पास नहीं कर रहे. तो थॉमस ग्राम ने नई टर्मिनोलॉजी यूज कर ली. कहते जो तो पार्टिकल्स एसपीएम से या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कर जाएं, एसपीएम या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कर जाएं, उनको कहना भैया क्रिस्टलॉइड. उनको क्या कहना, क्रिस्टलॉइड. और जो पार्टिकल्स एसपीएम से पास ना करें, जो पार्टिकल्स एसपीएम से पास ना करें, उनको कहना कोलॉइड. उनको कहना कोलॉइड. जो एसपीएम यानी कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कर जाए, उनको कहना क्रिस्टलॉइड. और जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास ना करे, उनको कहना कोलॉइड. ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछ लो. ठीक है, तो वो चला गया अपना भाषण देके. बाद में लेटर ऑन काफी ऑब्जर्वेशन हुई और उसके काम पे क्वेश्चन मार्क लग गया. ठीक है, हाँ जी, NaCl को हमने पानी में डिसॉल्व कर रखा है. ठीक है, तो ये क्रिस्टलॉइड का काम करेगा. ठीक है, सल्यूट विच कैन पास थ्रू एसपीएम बिहेव एज अ क्रिस्टलॉइड अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राम. थॉमस ग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या है, क्रिस्टलॉइड है. उसी NaCl को उठा के आप बेंजीन में फेंक दो, बेंजीन में सॉल्युबल करने की कोशिश करो, वहां पे ये एसपीएम से पास नहीं होने वाला. जब ये सल्यूट बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये डेफिनेशन तो रॉन्ग है. ठीक है, डेफिनेशन क्या है, सोल्यूट है. ठीक है, सॉल्वेंट तो पर्टिकुलर बताया नहीं ना इन्होंने. सोल्यूट है, सोल्यूट अगर तो एसपीएम से पास कर रहा है तो वो क्रिस्टलॉइड है. अगर सोल्यूट एसपीएम से पास नहीं कर रहा तो वो कोलॉइड है. वो क्या है, कोलॉइड है. अब ये जो सोल्यूट है, जैसे कि NaCl took this NaCl and put into the एनी अदर सॉल्वेंट सच एज द बेंजीन में रख दिया. ठीक है, तो बेंजीन में रखते हो तब पास करने की कोशिश करते हो तो नमक पास नहीं होता. यानी कि जैसे ही आपने सॉल्वेंट चेंज किया, जैसे ही आपने सॉल्वेंट चेंज किया, क्रिस्टलॉइड नहीं रहा. क्यों? क्योंकि क्रिस्टलॉइड का काम क्या है, इट विल पास थ्रू द एसपीएम.
इट विल पास थ्रू द एसपीएम। बट जब वही जो NaCl है, ठीक है, आपने उठा के वाटर की बजाय किस में डिसॉल्व किया है बेटा, आपने बेंजीन में डिसॉल्व किया है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पार्चमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, यानी कि अगर ये सल्यूट बेंजीन में डिसॉल्व है, ठीक है, तब ये नहीं काम करेगा किसका, क्रिस्टलॉइड का। यानी कि डेफिनेशन में कहीं ना कहीं क्या है बेटा, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तब बात आई कि एक्चुअली जो पार्टिकल का साइज है उसके बेस पे डिसाइड किया जाना चाहिए कि कौन कोलॉइड है और कौन क्रिस्टलॉइड है, कौन कोलॉइड है और कौन क्या है बेटा, क्रिस्टलॉइड है, ठीक है। तब एक डिस्कशन आया, वो क्या आया, अगर आपके पार्टिकल का साइज, अगर आपके पार्टिकल का साइज 10⁻⁻9 मीटर से लेके 10⁻⁻6 मीटर तक है, ठीक है। अगर आपके पार्टिकल का साइज 10⁻9 मीटर से लेके 10⁻⁻6 मीटर है, ठीक है, -9 कम है, -6 ज्यादा है, तो पता है ना, ठीक है। ये पार्टिकल साइज है, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10⁻⁻9 मीटर का क्या मतलब है, 1 नैनोमीटर। इसका क्या मतलब है, 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। अगर आपके सल्यूट पार्टिकल का साइज इतना है, दे विल कॉल एज कोलॉइड्स। अगर सल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है बेटा, 1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या 10⁻³ नैनोमीटर, वो क्या कहलाएंगे, कोलॉइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, कोलॉइड कहलाएंगे। अगर पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल का साइज है, ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम आ रहा है, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या आ रहा है बेटा, कम आ रहा है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक आपके पार्टिकल का साइज है, तो वो क्या कहलाते हैं, कोलॉइड। क्या कहलाते हैं बेटा, कोलॉइड, ठीक है। फिर अगर साइज इससे कम आ रहा है तो उसको कह देंगे बेटा क्रिस्टलॉइड। क्या कह देंगे, क्रिस्टलॉइड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर तो पार्टिकल का साइज ये है तो है वो कोलॉइड, अगर इससे कम है तो क्या कहला देंगे बेटा, क्रिस्टलॉइड कह देंगे। क्या कह देंगे, क्रिस्टलॉइड। याद रखना 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। नैनोमीटर में 1 तो याद रख लो, बाकी आप कन्वर्ट करना जानते ही होगे, ठीक है। 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक अगर आपका पार्टिकल साइज है, ठीक है, वो कोलॉइडल। किसका पार्टिकल का साइज, सल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक है, तो वो कहते हैं कोलॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कोलॉइड्स कहलाते हैं। तो यहीं से डिस्कशन स्टार्ट होता है बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशंस का। किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। सबसे पहले एक सॉल्यूशन अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। एक अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एग्जैक्ट कोलॉइड की अब मैंने जो बताया था ये जनरल था कि कहाँ से आई ये कोलॉइड्स, किसने डिस्कशन किया कोलॉइड नाम, ठीक है। तो अब जो डिस्कशन करना है वो क्या है बेटा, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं इसमें आपके सामने 3 सॉल्यूशन रख रहा हूं। एक है ट्रू सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरे हैं बेटा सस्पेंशंस। तीसरी क्या है, सस्पेंशंस। एक है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड वन क्या है बेटा, थर्ड वन है सस्पेंशंस। अब ये ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं,
जो आप जिनके बारे में सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करके आए हो बेटा, ठीक है, उनके केस में देखा होगा आपने, जब भी डिस्कस करते हैं पानी में नमक मिला दिया, यूरिया मिला दिया, या वाटर में इथेनॉल मिला दी, बेंजीन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन हैं जो जिनमें सल्यूट पार्टिकल बहुत छोटा है, बहुत क्या है बेटा, छोटा है, ठीक है। अगर याद हो तो उनकी डेफिनेशन में एक पॉइंट लिखा था अपन ने, ये क्या है बेटा, होमोजीनस, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस, ठीक है। और इनके पार्टिकल का साइज, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के रेंज से, कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज सबको याद रहनी चाहिए, वेरी करती है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। कहां तक, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। अगर जो पार्टिकल का साइज है, किसका बेटा, पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से कम आता है, साइज क्या आता है बेटा, लेस देन 1 नैनोमीटर। सल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर। वो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है, वो कहलाता है होमोजीनस सोल्यूशन। एग्जांपल, वाटर के अंदर NaCl डिसॉल्व्ड है, ठीक है, तो वो कौन सा सोल्यूशन है, होमोजीनस सोल्यूशन, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन। पार्टिकल का जो साइज है दैट विल बी लेस देन द 1 नैनोमीटर, वो क्या रहेगा बेटा, 1 नैनोमीटर से लेस रहेगा, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन की एक खास बात याद रखना बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म हेट्रोजीनस मिक्सचर। इनको हेट्रोजेनिटी को कंफर्म करने के लिए हम कुछ ये है अपन फिनोमिनाज पढ़ते हैं, आपने 9th में भी पढ़े हैं, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टेंडॉल इफेक्ट, ठीक है, तो वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है हेट्रोजेनस मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। और यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है, ठीक है, वो 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर तक रहता है, ठीक है। तो डिफाइन ऐसे नहीं कर देना, डिफाइन कैसे करोगे, टू सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन व्हिच आर होमोजेनस इन नेचर एंड इन दिस सोल्यूट पार्टिकल्स आर हैविंग साइज लेसर देन द 1 नैनोमीटर। साइज क्या रहेगा बेटा, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन इन व्हिच कोलाइडल सोल्यूशन आर द हेट्रोजेनस मिक्सचर इन व्हिच कोलाइडल पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर्स, ठीक है। तो फिर बात करते हैं सस्पेंशन की, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन में एग्जांपल याद कौन सा रखोगे बेटा, गम को पानी में डिसॉल्व करते हो, या आप स्टार्च को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, और कोलाइडल सोल्यूशन के वेरियस एग्जांपल्स हैं जो अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब जो पोर्शन बचा है वो सारा कोलाइडल्स पे ही है, तो इसी के एग्जांपल्स अपन को डिस्कस करने हैं। सस्पेंशन क्या है बेटा, पानी के अंदर रेत मिक्स किया हुआ है, पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, इजीली विजिबल, ग्रेविटी के अंडर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो तो हमें बचपन से ही पता है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ये तो हम बचपन से खेलते ही आए हैं। कौन सा मिक्सचर है ये, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और इस हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल की रेंज है वो 10⁻³ नैनोमीटर है, उससे ज़्यादा रहती है। पार्टिकल जो सोल्यूट पार्टिकल की रेंज है उसका साइज है बेटा 10⁻³ नैनोमीटर से क्या रहता है बेटा, ज़्यादा रहता है, क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये होते हैं सस्पेंशन, ये होते हैं सस्पेंशन। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा इनकी प्रॉपर्टीज, तो इनको मैं कंपेयर ही कर लेता हूँ, डायरेक्ट डिफरेंस भी हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी, अलग अलग नहीं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में, वो डिस्कस करते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन, पहली चीज तो यहीं से क्लियर है, नेचर, नेचर इसका क्या है, होमोजेनस, इसका क्या है, हेट्रोजेनस, इसका क्या है, हेट्रोजेनस, ठीक है। पार्टिकल साइज ट्रू सोल्यूशन में 1 नैनोमीटर से लेस होता है, कोलाइडल सोल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सब डिस्कस करते हैं कैसे। चलो, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी, जिसके बेस पे अपन को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रू सोल्यूशन के बारे में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में, और इधर मैं लिखूंगा सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है बेटा, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, नेचर क्या है, नेचर। ट्रू सॉल्यूशन का नेचर क्या है, ये होमोजेनस है,
ये क्या है बेटा, होमोजीनस है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर क्या है, ये हेट्रोजीनस है। सस्पेंशन का नेचर क्या है, ये भी क्या है बेटा, हेट्रोजीनस है। नो, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या आता है बेटा, सेकंड आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये सल्यूट पार्टिकल्स। सल्यूट पार्टिकल के साइज की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल का साइज क्या रहता है, इसमें रहता है बेटा लेस देन 1 नैनोमीटर। यहाँ पे रेंज करता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और यहाँ पे क्या आता है बेटा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। थर्ड बेटा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल, छन्नी लगानी है एक लगा दी, सिंपल फिल्ट्रेशन। एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन का मतलब इसके पार्टिकल्स को फिल्टर करके अलग करना है, ठीक है। तो चाहे अल्ट्रा क्या होता है बेटा, दो चीज़ें हैं कि छलनी लगा दी है ना, एक और बारीक होल्स वाली छलनी लगा दी, ज़्यादा फाइन उसमें रहेगा, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो आपकी कैपिलरीज हैं, जो आपके पोर्स हैं, और भी उसकी पोरोसिटी कम की हुई है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है बेटा, हाई लेवल की फिल्ट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे छोटे पार्टिकल्स को रोका जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल फिल्ट्रेशन से, ठीक है, ये फिल्टर नहीं हो सकते, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी फिल्टर नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो फिल्टर ही हाथ से निकाल लो, चाहे सस्पेंशन को, मिट्टी को हाथ से पकड़ के अलग कर लो पानी से, ठीक है। तो ये सिंपल फिल्ट्रेशन क्या है, ये तो हाथ से ही फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सिंपल, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी सोल्यूशन क्या है बेटा, फिल्टर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या हो जाते हैं बेटा, फिल्टर हो जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और जो सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन तो फिल्टर्ड ही है ना, सस्पेंशन तो क्या है बेटा, फिल्टर्ड ही है, ठीक है। तो ये थर्ड डिफरेंस है, दैट इज द फिल्ट्रेशन। कौन सा डिफरेंस है बेटा, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या है, फोर्थ पॉइंट। डिफ्यूजन। किसके पार्टिकल्स ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रू सोल्यूशन है, छोटे पार्टिकल हैं, तो डिफ्यूजन क्या होगा, रैपिड। क्या होगा, रैपिड डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, स्लो डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन होगा, स्लो डिफ्यूजन होगा। और यहाँ पे पार्टिकल का डिफ्यूजन क्या होगा, जितना बड़ा पार्टिकल है डिफ्यूजन उतना स्लो होगा। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन है पार्टिकल्स का, वो क्या रहेगा बेटा, वेरी स्लो रहेगा। वो क्या रहेगा, वेरी स्लो रहेगा, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ है बेटा आपका टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट होता क्या है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। 9th में भी क्या हुआ वैसे आपने, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जो पार्टिकल्स हैं उन पे जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट टकराने के बाद स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से पाथ विजिबल रहता है। पाथ क्या रहता है बेटा, विजिबल रहता है, ठीक है। टिंडाल इफेक्ट हमेशा वही सब्सटेंस शो करेगा जिसके पार्टिकल का साइज लार्ज है और जो हेट्रोजीनस नेचर का है। कौन से नेचर का है बेटा, हेट्रोजीनस नेचर का है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ट्रू सोल्यूशन, इट इज ऑफ होमोजीनस नेचर, ठीक है। तो ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करने वाला, डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। ये जो है टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। जो कोलाइडल सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। ये शो करता है क्या बेटा, टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। और जो सस्पेंशन है, ये इट आल्सो शो द टिंडाल इफेक्ट। ये भी टिंडाल इफेक्ट क्या करता है बेटा, शो करता है, ठीक है। सिमिलरली द ब्राउनियन मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। इन दोनों प्रॉपर्टीज को आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अगली मूवमेंट कौन सी है बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ये क्या होता है, ठीक है, जिगजैग पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा।
ठीक है। तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये भी हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस शो करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो, ये भी ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, ये भी क्या शो करेगा बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। किसका अफेक्ट, ग्रेविटी का अफेक्ट। ठीक है। तो ग्रेविटी का क्या अफेक्ट है बेटा, ग्रेविटी में सेटल डाउन कौन सा पार्टिकल हो सकता है। ठीक है। आपने शुगर का सोल्यूशन भी देखा होगा, शुगर नीचे सेटल डाउन नहीं होती। स्टार्च का सोल्यूशन भी देखा होगा, वो भी नीचे सेटल डाउन नहीं होता। ठीक है। और जो आपका वो है मिट्टी रेत में डाली हुई, वो क्या है, सेटल डाउन हो जाती है ग्रेविटी के अंडर, वो क्या है बेटा, सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो यहां पे क्या है बेटा, ये सेटल डाउन हो जाते हैं, डू नॉट सेटल डाउन। जो क्लाइडल सॉल्यूशन है ये भी सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है। और जो सस्पेंशन है ये क्या है बेटा, ये हो जाती है सेटल डाउन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, विजिबिलिटी। अब पार्टिकल्स की विजिबिलिटी इसमें तो होती नहीं है, नो। ठीक है। इसमें विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो पार्टिकल्स जो है थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो दिखेंगे। इसमें पार्टिकल्स की विजिबिलिटी है ही नहीं। इसमें जो विजिबल है कहाँ पे है बेटा, माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल है, एंड दैट कैन इजीली बी सीन। ठीक है। और जो सस्पेंशन में पार्टिकल्स हैं वो क्या है बेटा, जो सस्पेंशन में पार्टिकल्स हैं वो क्या रहते हैं बेटा, वो तो विजिबल विद द नेक्ड आइज। ये नेक्ड आई से, खुली आंखों से पानी में रेत मिलाइए, पता ही है, दिखता ही है। ठीक है। तो क्या है बेटा, विजिबल रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, विजिबल रहते हैं।